तारीफ हो। Today's for our meditation shall we open our Bibles to Mark the Gospel chapter 9. आज अपने ध्यान के लिए पढ़ेंगे मरकुस सुसमाचार उसका 9 अध्याय। Mark the Gospel chapter 9 verse 1 to 8. मरकुस 9 अध्याय उसका 1 से लेके 8 वचन। 1 to 5. 1 से लेके 5 वचन। Mark the Gospel chapter 9 verse 1 to 5. मरकुस 9 का 1 से 5 वचन। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो जहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा कि यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम यहाँ 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। फिर उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਕਈ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਕਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਚਖਣਗੇ। ਅਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਮਕਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਡਾਢੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਛਿਪਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਏਲੀਆ मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, स्वामी जी, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਡੇਰੇ ਲਾਈਏ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ मूसा ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਲਈ। And he said to them, truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power. And after 6 days, Jesus took with him Peter and James and John and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured for them, and his clothes became radiant and intensely white, as no one on earth could bleach them. And there appeared to them Elijah with Moses, and they were talking with Jesus. And Peter said to Jesus, Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, and one for Moses, and one for Elijah. Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Before we are meditating this verse, I want to ask question from you. इस वचन पे ध्यान करने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। How many of you yesterday came for the communion service? कल प्रभु भोजन की सेवा में तुम में से कितने लोग आए थे? Lift up your hands. अपने हाथों को उठाओ। Hallelujah. For you, I will ask a question. आपके लिए एक सवाल पूछता हूँ मैं। What is the keyword of the message? कल का जो प्रचार था उसका मुख्य वचन क्या था? नीति वचन 14:23। Bylaws. What is the keyword of the मेन वचन क्या था message? साजन बोलो। नीति वचन 14। हाँ, बाइलॉग्स, बैन लॉग्स। Proverbs 14:23. What is the theme of the message? कल का जो मेन जो उद्देश्य था वो प्रचार का क्या था? परिश्रम करना। Very good. Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Graciously God gave us a communion service. Before the communion service, we are waiting
in the presence of God and sanctify ourselves. परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें प्रभु भोजन की सेवा दी और प्रभु भोजन की सेवा से पहले हमने रोजा रख के अपने आप को शुद्ध किया And we are partaking in the communion service. और प्रभु भोजन की सेवा में हम लोग शामिल हुए। For what we are taking this communion service. ये प्रभु भोजन हमने किस लिए लिया? Day by day, this we are eating bread and wine. We are taking the God's flesh and blood. दिन बाय दिन हम रोटी और दाखरस पीते हैं और परमेश्वर का बदन खाते हैं और लहू पीते हैं। This flesh and blood enter in our life, and this flesh and blood become a transformation in our life. ये लहू और मांस हमारे अंदर जाता है और हमारी जिंदगी को बदलता है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When we take this blood and flesh and blood, जब हम ये शरीर और लहू पीते हैं, that eternal life is entered in our body and soul and spirit. और वो जो सदा का जीवन है हमारे आत्मा प्राण शरीर में प्रवेश करता है। Day by day, that glory, the transformation power will work in our life. और दिन बाय दिन जो बदलाव की जो शक्ति है हमारी जिंदगी में कार्य करती है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। When we sanctify ourselves and partake in the communion service, जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं और इस पवित्र भोजन की सेवा में शामिल होते हैं, then only that transformation power will enter in our body. तभी जो रूपांतर की शक्ति हमारे अंदर कार्य करती है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Now we are reading in the Gospel chapter 9. अभी हम मरकुस 9 में क्या पढ़ते हैं? While Jesus was in serving minister in earth, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा कर रहे थे, he take Peter, John and James and take and prayed into the mountain, and he went up to the mountain. उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और वहाँ यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। There he was transfigured before them. और उनके सामने यीशु मसीह का रूपांतर हो गया। What he said? उसने क्या कहा? Verily I say unto you that there be some of them that stand here which shall not taste of death till they have seen the kingdom of God come with power. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। Second verse we can see. और दूसरे वचन में हमने क्या पढ़ा? And after 6 days Jesus take up with Peter and James and John. दूसरे में पढ़ा कि 6 दिन बाद उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को यीशु मसीह साथ लेके गए। After the 6 days, what is the next day? 6 दिन के बाद जो अगला दिन कौन सा था? 7th day. 7वां दिन। What is the meaning of the 7th day? और ये 7वें दिन का क्या मतलब है? 7th day is a rest day. और 7वां दिन जो है वो विश्राम का दिन है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। But in the 8th day only the transformation take place. लेकिन जो 8वां दिन था उसी में परमेश्वर यीशु मसीह का रूपांतर It हुआ। means 7th means 7. The number of 7 shows the perfection. 7 का मतलब है कि पूरा सिद्ध होना। Look the Gospel chapter 9. लूका 9 अध्याय। There we can see 28th verse. लूका 9 का 28 में हम लोग क्या देखते हैं? There we can see 8th day. वहाँ पे हम लोग 8वां दिन देखते हैं। Look the Gospel chapter 9 verse 28. लूका 9 उसकी 28 अध्याय। Look the Gospel chapter 9 verse 28. इन बातों के कोई 8 दिन बाद वहाँ पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। After the perfection only the transformation take place in our life. सिद्ध होने के बाद ही हमारी जिंदगी में रूपांतर कार्य करता है। That's why we in so many dispensation we can see. Dispensation. बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते। Dispensation मतलब युगों का। बहुत सारे युगों को हम लोग देखते हैं। Kindly read Ephesians chapter 1 verse 9. इफिसियों 9 उसके 1 उसका 9 को पढ़ेंगे। Ephesians chapter 1 verse 9. इफिसियों 1 अध्याय उसका 9 वचन। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। 10th verse.
कि समयों के पूरे होने का समय पूरा होना, that in the dispensation of the fullness of the time might get पढ़िए कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। After the dispensation of the fullness of times, इस समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध। praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Once the Lord Jesus Christ came in the world as a babe. जब एक बार प्रभु यीशु मसीह इंसान बन के इस दुनिया में आ चुके हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Now he is going to appear as a bride. अभी प्रभु यीशु मसीह दूल्हे के रूप में आएंगे। Praise be to His holy name. यीशु मसीह के नाम की तारीफ। That's why we should receive the transformation power in our body, soul and spirit. इसीलिए हमें अपने आत्मा प्राण शरीर में उस रूपांतर की शक्ति को प्राप्त करना है। That's why yesterday we are hearing how we must laboring for God. इसलिए हमने कल भी पढ़ा, हमने सीखा कि कैसे हमें परमेश्वर के लिए परिश्रम करना है। We must strive for God. We must live for God. हमें ये परमेश्वर के लिए जीना है। How much we laboring for the God, that much we receive fullness of blessing. जितना परमेश्वर के लिए परिश्रम करेंगे उतनी ही हम लोग बरकतों को पाएंगे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। How much you labor, that much you earn gaining. और जितना आप लोग परिश्रम करोगे उतना ही आप लोग प्राप्त करोगे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That's why we are yesterday we are hearing we are laboring our family, but we are not laboring for our God. कल हम लोगों ने सीखा कि अपने परिवार के लिए तो हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए मेहनत नहीं करते। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That's why how much we submit our body, soul and spirit for God, that much that transformation power will work in our life. जितना अपने आत्मा प्राण शरीर को हम लोग समर्पित करेंगे उतना ही रूपांतर की शक्ति हमारे अंदर कार्य करेगी। Here 3 disciples went with God. Went with Lord Jesus Christ. यहाँ पे यीशु मसीह के साथ 3 चेले गए। I will ask a question. How many disciples were for Lord Jesus Christ? मैं सवाल पूछता हूँ, यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 among the 12 disciples, only 3 disciples, the Lord Jesus Christ came with him. यीशु मसीह Take के with him. 12 चेलों में से सिर्फ 3 चेले ही उसके साथ गए। Our Lord Jesus Christ is not partiality. यीशु मसीह में कोई पार्शियलिटी नहीं थी। But why these 3 persons take with along with him? फिर क्यों यीशु मसीह ने 12 को छोड़ के उन तीनों को ही अपने साथ लिया? So many want to see the glory of God. बहुत सारे थे जो यीशु मसीह की महिमा को देखना चाहते थे। 3 only the Lord Jesus shown that the glory of God. लेकिन सिर्फ 3 लोगों को ही यीशु मसीह ने अपनी महिमा को दिखाया। Praise be to His holy name. यीशु मसीह के नाम की तारीफ। In this world also so many are ministered unto God. यहाँ पे भी दुनिया में भी बहुत सारी सेवकाइयाँ हैं। So many churches we are seeing in this world. बहुत सारी कलीसियाँ दुनिया में हैं। But only glorified church only caught up in the coming of the Lord. लेकिन सिर्फ महिमामय कलीसिया ही यीशु मसीह के साथ उठा ली जाएंगी। That's why in these days we must know how to labor for God. इसीलिए इन दिनों में हमें सीखना है कि कैसे परमेश्वर के लिए हमें मेहनत करनी है। We should always be in the presence of God. हमेशा यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने आप को रखना है। When we read Luke the Gospel chapter 21, लूका उसका 21 अध्याय जब पढ़ते हैं, there we can see kindly read 36 and 37th verse. 21 का 36 और 37 हम लोग पढ़ेंगे। Luke the Gospel chapter 21 verse 36 and 37. लूका 21 का 36 और 37 पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। Praise be to His holy name. यीशु मसीह के नाम की तारीफ। Watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचे रहो। That shall come to pass and to stand before the Son of Man. और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। That qualification
we are going to stand before the Son of Man. That is the qualification is the prayer life. जो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए कि हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रह सकें, Watch ye therefore इसलिए जागते रहो and pray always. और हमेशा प्रार्थना करते रहो। Prayer is the weapon of our spiritual life. हमारी आत्मिक जिंदगी का हथियार है प्रार्थना। If we pray, then only we cannot enter into the temptation. और अगर हम प्रार्थना करेंगे तभी हम मुसीबत से बच सकते हैं। Praise be to His holy name. विश्व के नाम की तारीफ हो। Now, when we see our keywords, जब हम अपने मुख्य वचन को देखते हैं, Mark the Gospel chapter 9, what do we read there? मरकुस 9 अध्याय में हमने क्या पढ़ा? 3 disciples went with Jesus on the mountain. और पहाड़ पे यीशु मसीह के साथ 3 ही उसके चेले गए। There we can see the Lord Jesus Christ transfigured before them. और उनके सामने यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Kindly read that was the Mark the Gospel chapter 9. और एक बार फिर से मरकुस उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे। Read 4th verse. चौथा वचन पढ़ेंगे। Sorry, 2 and 3. दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा कि यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Before them He was transfigured, उनके सामने यीशु मसीह का रूपांतर हुआ and His raiment became shining, exceeding white as snow, so as no filter on the earth can white them. और उसका वस्त्र ऐसा सफेद हो गया कि इस दुनिया का कोई भी धोबी उसे उतना सफेद नहीं कर सकता। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। After seeing all these things, और ये सारी चीजें देखने के बाद what does Peter says unto Lord Jesus Christ? पतरस यीशु मसीह से क्या कहता है? Our main theme is only this 5th verse. हमारा जो मेन वचन है वो ये 5वां वचन है। And what Peter answered unto said Jesus. पतरस ने यीशु मसीह से क्या कहा? Master, kindly read that 5th verse. पढ़ेंगे 5वां वचन। इस पर पतरस ने यीशु 4th and 5th. चौथा और 5वां। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। After He transfigured on that mountain, और जब वो उसका रूपांतर हुआ पहाड़ में, who will sin there? Who will sin there? क्या किस किसने ये देखा? Elias and Moses. और एलिया और मूसा यीशु मसीह के Praise साथ be to His थे। holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। And then Peter answers and said, और पतरस ने क्या बोला? Master, it is good for us to be here. रब्बी, ये हमारे लिए रहना अच्छा है। That is the main theme in our message. ये प्रचार का मुख्य वचन है। For Master, for it is good for to be here. हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Where we in these days, where we must found that. और इन दिनों में हमें कहाँ पाए जाना चाहिए? So many churches in this world. बहुत सारे कलीसियां इस दुनिया में हैं। So many denomination we can see in this world. बड़े सारे अलग अलग तरह की चर्चें हैं। But where we should be found there. लेकिन हमें कहाँ पाए जाना चाहिए? Jesus said unto Master, Master, it is good for us to be here. और पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि रब्बी, ये हमारा यहाँ रहना अच्छा है। In these days, we should also know where we should be found there. और इन दिनों में हमें ये जानना चाहिए कि हमें कहाँ रहना चाहिए। 5 example I will show. 5 तरह के उदाहरण मैं तुम्हें दूंगा। Otherwise, 5 places we should be there. 5 जगहों के बारे में बताऊंगा जहाँ हमें होना चाहिए। In these days, we should be in the 5 places. और उन 5 जगहों पे इन दिनों में हमें होना चाहिए। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। First of all, when we see, पहला जब हम लोग देखते हैं Mark chapter 9 verse 2, what do we read there? मरकुस 9 का 2 में क्या पढ़ते हैं? Read that. पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया
और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। He went up to mountain. और वो पहाड़ के ऊपर गया। In these days, first of all, we must know we should be in the mountain. और इन दिनों में हमें जानना चाहिए कि इन दिनों में हमें पहाड़ के ऊपर रहना चाहिए। First of all, we should be in the mountain. पहला हमें पहाड़ के ऊपर रहना चाहिए। What is this mountain shows? पहाड़ का क्या मतलब है? Mountain shows the higher life. पहाड़ का मतलब है कि ऊंचा जीवन। In the high place, who will be there? ऊंचे स्थानों में कौन रहता है? In this place, for whom this place will appointed. और ये जो ऊंचा स्थान है ये किन लोगों के लिए है? In this day, we should not be in the plain. We should climb up the mountain. हमें जो है एक पथरी जगह पे नहीं रहना चाहिए बल्कि पहाड़ पे चढ़ना चाहिए। Before 15 years, I was serving in Punjab. और 15 दिन पहले मैं पंजाब में सेवा कर रहा था। After 4 years, I transferred to Jammu. और 15 साल के बाद 4 साल के बाद मेरी बदली जम्मू में After I came here, I was so discouraged. और जब मैं यहाँ आया तो बड़ा मैं बेदलेर हो गया। Once elder brother, he gave advice. He encouraged me. और एक बड़े ब्रदर ने मेरे को सलाह दी। What he said? उन्होंने क्या बोला? Don't be afraid. उन्होंने बोला कि डरो मत। Don't be discouraged. और बेदलेर मत हो। God gave a counsel to you. परमेश्वर तुमको सलाह देगा। Do not be stay or in plain places. हमेशा जो है वो प्लेन जगह पे मत रहो। Punjab is a plain place. पंजाब जो है वो प्लेन जगह है। Jammu Kashmir, we can see every year mountain. और जम्मू कश्मीर हर जगह देखते हैं पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ। That's why God also brought up in this Jammu Kashmir. और इसीलिए तुम्हें परमेश्वर ने जम्मू कश्मीर में लेके आया। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की What तारीफ। is this mountain shows? और ये पहाड़ क्या बताते हैं? Mountain shows the prayer life. और पहाड़ का मतलब है प्रार्थना वाली जिंदगी। We must climb up to mountain. हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। Every human being, they walking in the plain place very easily. और हर इंसान जो है प्लेन जगह पे बड़ी आसानी से चलता है। Climbing up the mountain is a very hard. लेकिन पहाड़ को चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Every human being is coming and going in the presence of God. और हर इंसान जो है वो आता है परमेश्वर की हुजूरी से जाता है। Not to spend more time in the presence of God. It is hardful for it is climbing up to the mountain. लेकिन परमेश्वर की हुजूरी में ज्यादा समय व्यतीत करना उसके लिए मुश्किल है, पहाड़ चढ़ने जैसा है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। That's why the Lord said unto Lot also. वही चीज परमेश्वर ने लूका को भी बोली। Lot. परमेश्वर ने लूत को भी बोली। Kindly read that verse, Genesis chapter 19. पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 19 अध्याय। What is the angel of God said unto Lot? और लूत को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने क्या कहा? 19:17. Kindly read that verse. 19 का 17 पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Angel of the Lord said unto Lot, he said, escape for the life, look not behind thee, neither stay thou in the plain. और स्वर्गदूत ने लूत से कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। Escape to the mountain lest thou be consumed. उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। God's counsel is escape to the mountain. और परमेश्वर ने उसे सलाह दी कि तू पहाड़ पे भाग जा। But Lot mind is, what is the mind of the Lot? लेकिन जो लूत का दिमाग कैसा था? What he says unto the angel of God. लूत ने स्वर्गदूत से क्या कहा? Oh, not so, my Lord. उसने कहा, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है। Behold, kindly read 18th and 19th verse. 18 और 19 पढ़ेंगे। Not so, my Lord. उसने कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर। Behold, now thy servant hath found grace in thy sight. देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है। Thou hast magnified thy mercy. और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है। Which thou hast showed unto in my saving my life. I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, I will die. कि मैं दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। Sometimes like Lot also, we are also
so many excuses. कई बार लूत की तरह हम भी बड़े बहाने बनाते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। The God counsel is escape to the mountain. परमेश्वर की सलाह ये थी कि तू पहाड़ पे भाग जा, Escape to save your life. अपनी जिंदगी को बचा ले। Like Lot also, we are not we climb up to the mountain. और लूत की तरह हम भी पहाड़ पे नहीं भागते। What he said और क्या कहा लूत ने? in 20th verse, behold now this city is near to flee unto, and it is little one, oh let me escape there. 20 वचन में वो कहता है, देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है। God's counsel is we should not be in the plain places. परमेश्वर की सलाह ये है कि हम लोग प्लेन जगहों पे नहीं रहें। We should we should climb up to the mountain. हम लोग पहाड़ पे चढ़े। What is this mountain show? और ये पहाड़ क्या बताता है? Who will climb up to the mountain? कौन पहाड़ पे चढ़ सकता है? Psalms 15th Psalm, there we can see 15:1-5. और 15 भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं। 15th Psalm, kindly read all this verse. 15 भजन संहिता में हम लोग पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े तो जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Here we can see so many things we can see in these verses. और इस अध्याय में हम लोग कई चीजें देख सकते हैं। Who shall dwell in the holy hill or holy mountain? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? First of all we can see he that walketh uprightly. और पहला हम देखते हैं जो खराई से चलता। Secondly, worketh righteousness. और धर्म के काम करता है। Thirdly, speaketh truth in his heart. और जो हृदय से सच बोलता है। Fourthly, he that backbiteth not with his tongue. और चौथा जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। Fifthly, not doeth evil to neighbor. और पांचवा ना अपने मित्र की बुराई कर, अपने पड़ोसी की निंदा करता है। Sixthly, take up a reproach against the neighbor. और छेमा देखते हैं जो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। Nextly, in whose eyes a vile person is consumed, but honoreth them that fear the Lord. वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैये हैं, डरवैयों का आदर करता है। He that sweareth not to his own hurt and changeth not. जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। Lastly, you can see he that putteth not out his alonely to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved. और अगला देखते हैं जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। They only climb up to the mountain. और यही है जो पहाड़ पे चढ़ सकते हैं। In these days we must be found in the mountain. और इन दिनों में हमें पहाड़ पे पाए जाना चाहिए। Then only that transformation take in our life. और तभी वो रूपांतर हमारी जिंदगी में काम करने पाएगा। The power of resurrection will work in our life. और जी उठने की ताकत हमारे अंदर काम करने पाएगी। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Secondly, when we see, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? who will where we should be found. और दूसरा हमें कहाँ पाए जाना चाहिए? Kindly read Mark the Gospel chapter 9 verse 2. पढ़ेंगे मरकुस 9 का 2 वचन फिर से। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। Next verse. और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। Here, when in the Hindi we can see we cannot see that words.
यहाँ पे हिंदी में ये वचन हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते, the three of them he take alone. और यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है कि तीनों को अकेले में ले गया। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। So many disciples were with them. यीशु मसीह के साथ बड़े चेले थे, But he take the three along with them. लेकिन सिर्फ 3 को ही अपने साथ ले गए, He take the three alone. और तीनों को अकेले में ले गए। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। We should be found in alone. हम लोग अकेले में पाए जाने चाहिए। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। Secondly, we must be found in alone. और दूसरा, हमें अकेले में पाए जाना चाहिए। Alone means, what is the meaning of alone? अकेला रहना क्या मतलब है? Life of separation. उसका मतलब है एक अलगताई का जीवन। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ। So many evil power working against our life. बहुत सारी बुरी शक्तियां हमारी जिंदगी के विरोध काम करती है। See, life of people of Israelites. हम लोग इसराइलियों के बारे में देखते हैं। They came out from the Egypt. वो मिस्र से बाहर निकल आए। They journey in the wilderness. उन्होंने जंगल में अपनी यात्रा की। On the one occasion, the Balaam want to curse them. और एक जगह पे बलाम आके उनको श्राप देने के लिए आया। At the time, the spirit of God says what says unto the about the people of Israelites. और उस समय ये परमेश्वर की आत्मा ने इसराइलियों के बारे में क्या कहा? When we turn our Bibles to Numbers chapter 23, गिनती उसका 23 में जब पढ़ते हैं, there we can see 9th verse. What do we see there? गिनती 23 का 9 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Kindly read that verse. पढ़ेंगे उसको। 23:9. 23 का 9। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वे ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी। अकेली बसी रहते। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him. The people shall dwell alone. चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वे ऐसी जाति हैं जो अकेली बसी रहेगी। They dwell alone. और वो अकेली बसी रहेगी। We are living in this world. हम भी इस दुनिया में रहते हैं। We are living in the sinful world. हम इस पाप भरी दुनिया में रहते हैं। We are living in the strange men, among the strange men. हम लोग पराये लोगों के बीच में रहते हैं। But we should be live alone. लेकिन उन लोगों के बीच में हमें अकेले रहना है। We should be found alone. हमें अकेले पाए जाना है। They should testify about you. He is a believer of God, saints of God. और वो लोग आपके बारे में गवाही देना चाहिए कि ये परमेश्वर के विश्वासी हैं। We should not mingle with the other people. उनके साथ हमें मिल नहीं जाना। We should be found alone. हमें अकेले पाए जाना है। We should preserve our life of separation. अपनी अलगताई की जीवन को संभाल के रखना। Then only we can see the glory of God. और तभी परमेश्वर की महिमा को हम लोग देख पाएंगे। Then only we can see that power of transformation work in our life. और तभी रूपांतर की शक्ति हमारी जिंदगी में काम करता हुआ देख सकते हैं। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Thirdly, we can see. तीसरा हम लोग क्या देखते हैं? They are spending the present. They are spending the time in the presence of God. और तीसरा वो लोग परमेश्वर की हुजूरी में समय व्यतीत कर रहे थे। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। What did the psalmist says? और भजन संहिता वाला क्या कहता है? 42 Psalm verse 1 and 2. What do we read there? बताली का 1 और 2 में क्या पढ़ते हैं? When I will see in the presence of God. और कब मैं परमेश्वर की हुजूरी में पाया जाऊंगा? As the earth panteth after the water brook, so panteth my soul after thee, O God. जैसी हिरनी जल के लिए प्यासी है, वैसे ही मैं परमेश्वर की हुजूरी के लिए प्यासा हूँ। My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? मेरा प्राण परमेश्वर के लिए तरसता है कि कब मैं उसकी उपस्थिति में जाऊंगा। If you have the thirst about the presence of God, अगर परमेश्वर की हुजूरी के लिए आपके अंदर प्यास है, before time you are be in the presence of God. तो हम समय से पहले ही परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे। Nobody need to say come in the presence of in the time. किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टाइम पे आओ। Praise be to His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। We should be always seen the presence of God. हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में तुम लोग पाए जाने We should be faithful in the presence of God. हमेशा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में वफादार रहना है। Then only we can see the power of God. और तभी परमेश्वर की शक्ति को Then पाएंगे। only we can see the glory of God. परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। Then only that power of resurrection will work in our body, soul and spirit. और तभी वो रूपांतर की शक्ति हमारे आत्मा प्राण शरीर में कार्य कर पाएगी। In the presence
of God, that is a fullness of joy and right and for pleasures in the evermore. We are seeing in the Psalm 16:11. और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, हम भजन संहिता 16 के 11 में देखते हैं। First of all, we are climb up onto the mountain. और पहला हमें पहाड़ पे चढ़ना है, Secondly, we should found in the alone. और दूसरा हमें अकेले रहना है, We should preserve our life of separation. और हमें अपनी अलगताई वाली जीवन को संभाल के रखना है। Thirdly, we can found in the presence of God. और तीसरा परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। Fourthly, what do we read? What do we see there? और चौथा हम लोग वहाँ क्या पढ़ते हैं? We should suffer for God. हमें परमेश्वर के लिए कष्ट उठाना है। Mark the Gospel chapter 9. और मरकुस 9 अध्याय Kindly read 31 verse. 9 का 31 वचन पढ़ेंगे। 9:31. 9 का 31 वचन। क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Here we can see the life of suffering. और यहाँ पे हम लोग जो कष्ट उठाने वाला जीवन Son of देखते हैं, man is going to suffer. और परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र कष्ट उठाएगा। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Every human being having suffering. और हर एक इंसान के जीवन में कष्ट है। But the children of God suffer for Christ. लेकिन जो मसीह के लोग हैं वो मसीह के लिए कष्ट उठाते हैं। What the John the Gospel chapter 16 verse 33, what do we read there? और ये होना 16 का 33 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? In this world there is a tribulation. और इस दुनिया में तुमको कलेश है। In this world ye shall have a tribulation. इस दुनिया में तुमको कलेश होगा। But ye of good cheer, I have overcome the world. लेकिन हिया बांधे रहो, मैंने इस जगत को जीत लिया है। What do we read in the second Timothy chapter 2 verse 12? और दूसरा तिमोथी 2 का 12 में क्या पढ़ते हैं? Second Timothy chapter 2 verse 12. दूसरा तिमोथी 2 का 12। If we suffer, we shall also reign with him. अगर हम कष्ट उठाएंगे तो उसके साथ राज्य भी If we करेंगे। deny him, he also deny us. और अगर हम उसको इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। In these days, we must suffer for Christ. इन दिनों में मसीह के लिए हमें कष्ट उठाना है। As much as we suffer for God, और जितना मसीह के लिए कष्ट उठाएंगे, that much we can receive the glory of God. उतनी हम परमेश्वर से महिमा को पाएंगे। 2 Corinthians chapter 4 verse 17, what do we read there? दूसरा कुरिन्थियों 4 का 17 में क्या पढ़ते हैं? For our light affliction, which is but a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. और हमारा पल भर का कलेश हमें उस बड़ी महिमा के लिए जो है तैयार कर देगा। There is glory in the glory. There is a difference. और ये जो महिमा है ये अलग है। Sun glory, that is a different. और ये जो एक सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अलग है। Moon light that is a different. और चंद्रमा का प्रकाश वो अलग है। When we read 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, reading 41 words, what do we read there? 15 का 41 में क्या पढ़ते हैं? There is one glory of the sun and another glory of the moon and another glory of the stars. For another one star different, another star in glory. सूरज का तेज है और चांद का तेज है और तारागणों का तेज है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में फर्क है। If you suffer for Christ, अगर मसीह के लिए कष्ट उठाते हो, as much as you suffer for Christ, जितना मसीह के लिए कष्ट उठाया होगा, that much you can receive that glory of God. उतनी तुम लोगों को परमेश्वर की महिमा मिलेगी। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Lastly, fifthly, what do we read there? पांचवा हम लोग क्या पढ़ते हैं? When we reading our key verse, जब हम अपना मुख्य वचन पढ़ते हैं, there we can see Elijah and Moses. वहाँ हम लोग एली और मूसा को देखते हैं। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Mark the Gospel chapter 9 verse chapter 9 verse 4 we can see. हम मरकुस 9 का 4 में क्या पढ़ते हैं? And they appear unto them Elias and Moses. और वहाँ पे मूसा और एलिया भी यीशु मसीह के साथ दिखाई दिए। They were talking with Jesus. और वो यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे थे। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Why so many old saints is there?
और बहुत सारे पुराने नियम के संत थे, But why Elias and Moses, they appeared unto Jesus and talked with him. पर क्यों एलिया और मूसा ही यीशु मसीह के साथ आए और बातें करते थे? While Moses and Elias, they were alive in this world, they want to see the glory of God. क्योंकि जब मूसा और एलिया इस दुनिया में जिंदा थे तो वो परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते थे। Exodus chapter 33, what do we read there? निर्गमन उसका 33 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Exodus chapter 33 verse 18 to 22, what do we read there? निर्गमन उसका 33 का 18 से 22 में क्या पढ़ते हैं? Lord, I want to see thy glory. कि परमेश्वर मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ। There God said unto Moses, what to said unto Moses? और वहाँ परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? Those who see me, they did not alive. कि जो मुझे देख लेगा वो जिंदा नहीं रह सकता। That much glory the Lord God have. इतनी परमेश्वर की महिमा है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Kindly read that verse. पढ़ेंगे उस वचन को। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। Shall no man see me alive? क्योंकि मेरे मुख का दर्शन करके कोई जिंदा नहीं रह सकता। That much glory God have. इतना हमारे यीशु परमेश्वर का जलाल है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। While he was living on this earth, he wanted to see the glory of God. जब मूसा इस दुनिया में जिंदा था तो परमेश्वर की महिमा देखना चाहता था। After he died, he appeared unto Jesus and talked with Jesus. और जब वो मर गया तो वो आया और यीशु मसीह के साथ बातें करने लगा। Moses is the died person. मूसा जो है वो मर गया था। Elias is a living person. लेकिन एलिया जो है वो जिंदा था। Once again I will repeat. एक बार फिर से बताता हूँ। Moses is a died person. जो मूसा है उसकी मौत हो चुकी थी। Died saint of God. Died saint of God. वो एक परमेश्वर का एक मरा हुआ संत था। But Elias is living saint of God. लेकिन एलिया की मौत नहीं हुई थी, वो जिंदा संत था। Today also Elias living. आज भी एलिया जिंदा है। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। They both also they spent more time in the presence of God. और ये दोनों ने परमेश्वर की हुजूरी में बहुत समय को व्यतीत किया था। Moses spent 40 days and night he spent in the Mount Sinai. और जो मूसा ने पहाड़ के ऊपर 40 दिन और रात परमेश्वर की हुजूरी में बिताए गए। That's why you see the glory of God. इसीलिए उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। Elias more time spent in the mountain Carmel. और एलिया ने भी करमेल पहाड़ पे बहुत सारे समय परमेश्वर की हुजूरी में व्यतीत किया। That's why he appeared unto Jesus and talked with him. इसीलिए वो भी यीशु मसीह के साथ आके बातें करने लगा। That's why what the second Peter was 1, what do we read there? और इसीलिए दूसरा पत्रस 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Second Peter chapter 1 verse 16 to 18. Kindly read that verse. दूसरा पत्रस 1 का 16 से 17 पढ़ेंगे। First Peter chapter 1 verse 16 to 18. पहला पत्रस 1 का 16 से 17। क्योंकि Second Peter, Second Peter 1. Second Peter chapter 1 verse 16 to 18. दूसरा पत्रस 1 का 16-17। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। And they hear voice
He is beloved son. और ये वाणी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। The voice which came from heaven we heard when we are with him on the holy mount. और जो स्वर्ग से आवाज आई वो हमने सुनी जब हम उसके साथ पहाड़ पे थे। Oh, that is a glory in the mountain. और इसीलिए पहाड़ पे महिमा है। First of all I say, पहला मैंने क्या बताया, Moses is the dead holy saint of God. और जो मूसा है वो मरा हुआ परमेश्वर का संत है। Elias is the living saint of God. और एलिया जो है वो भी जिंदा है। What is this source? इसका क्या मतलब? Though both having the glory of God. इसका मतलब है कि दोनों में परमेश्वर की महिमा है। What is this shows? ये क्या बताता है? When we turn our Bibles to 1 Thessalonians chapter 4, पहला थिस्सलुनीकियों 4 में जब हम लोग when the Lord Jesus Christ appeared in the cloud, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, what do we take place in that coming of the Lord? और तब यीशु मसीह के आते समय क्या होगा? First Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं and the dead in Christ shall rise first. वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। The dead in Christ shall rise first. और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। The Lord Himself shall descend from heaven with the shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। Then we which are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। Praise be His holy name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। The coming of the Lord is very nigh unto us. और परमेश्वर का आना बहुत ही जल्दी है। That's what shall we all humble ourselves. और इसीलिए अपने आप को हलीम करें। Let us sanctify ourselves. अपने आप को शुद्ध करें। Once again shall we all sanctify ourselves. एक बार फिर से अपने आप को शुद्ध करें। In these days, graciously Lord God have that fasting, prayer and communion service. और इन दिनों में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें उपवास, प्रार्थना और for what this all these meetings came in our life. और क्यों ये सारी मीटिंग्स हमारी जिंदगी में आती हैं? We should see that the glory of God. ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देखें। The power of God work in our life. परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर कार्य करे। The power of resurrection took place in our body, soul and spirit. मसीह के जी उठने की ताकत हमारे अंदर। We should be always ready to meet our Lord Jesus Christ. हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलने को तैयार हो जाएं। Lord Jesus, Peter said unto Jesus, Lord, Master, we should be here. और जो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि रब्बी हम लोग यहाँ रहना ठीक है। We should climb up to the mountain. हम लोग पहाड़ पे चढ़े। We should renew the prayer life. अपनी प्रार्थना वाली जिंदगी को नया करें। We should be alone. अपने आप को अलग रखें। We should preserve our life of separation. अपनी अलगताई वाली जीवन को संभाल के We should be spend the time in the presence of God. अपनी परमेश्वर की हुजूरी में समय को व्यतीत करें। The presence of God is the joy of the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। In His presence there is fullness of joy. परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। We should always be in the suffering for Christ. और हमेशा यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाएं। Then only we can receive that glory of God. तभी परमेश्वर की महिमा को पा सकेंगे। Like Elias and Moses, we should always more time we spend, then only we can see the glory और of God. एलिया और मूसा की तरह ज्यादा समय परमेश्वर की हुजूरी में Let's all submit our life in the presence of God. अपनी जिंदगी को परमेश्वर की हुजूरी में Receive that grace. और वो अनुग्रह को प्राप्त करें। Receive for the glory. और उस महिमा को प्राप्त करें। Humble ourselves and let's all pray. अपने आप को नम्र करें और प्रार्थना करें। Hallelujah. में बनने के लिए गंद्रेस के पहाड़ पर मैं बना
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, my Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, my Lord. हमारा जीवन में महिमा को पर महिमा में हम बदलते जाना चाहिए। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम जगह देना है, प्रभु के लिए कष्ट उठाना है। जितने हम प्रभु के लिए प्रभु के हजूरी में हम समर्पण करेंगे उतना हमारा जीवन में महिमा पाएंगे। हमारा अंदर महिमा का आत्मा काम करेगा। कोई बीमारी, कोई दुष्ट शक्ति, कोई परेशानी छूने नहीं देगा। हाँ, ये थोड़ा समय 1-2 मिनट के लिए उस महिमा का आत्मा के द्वारा हम भर जाएंगे। महिमा का आत्मा के द्वारा हम भर जाएंगे। प्रार्थना का आत्मा के द्वारा भर जाएंगे। विनती करने वाला आत्मा के द्वारा भर जाएंगे। मुख खोलेंगे, सुनने के लिए अन्य भाषा बोलकर उस सामर्थ का आत्मा के द्वारा भर जाएंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. अनुग्रह के आगे बढ़ना, तो गति मानेंगे उद्धार होगा। अनुग्रह के आगे बढ़ूंगा, तो गति मानेंगे उद्धार होगा। प्रतिदिन प्रभु मुझे अभिषेक कर चला तू मुझे। प्रतिदिन प्रभु मुझे अभिषेक कर चला तू मुझे। अनुग्रह के आगे बढ़ूंगा, भक्ति माने होगा। अनुग्रह के आगे बढ़ूंगा, भक्ति माने होगा। कभी भी प्रभु कभी मुझे अभिषेक कर चला तू मुझे। कभी भी प्रभु कभी मुझे अभिषेक कर चला तू मुझे। कभी भी प्रभु कभी मुझे अभिषेक कर चला तू मुझे। कभी भी प्रभु कभी मुझे अभिषेक कर चला तू मुझे। कभी भी प्रभु कभी मुझे अभिषेक कर चला तू Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर हमको दिया पवित्र वचनों के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर को महिमा को देखने के लिए दिलों में हमेशा ऊंची पर्वत को ऊपर रहने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ विधि व्यवस्था का अनुसार चलने के लिए मरी को परमेश्वर मदद करना, जिसके लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord.
ऊंचे स्थान में रहने के लिए और परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए हमारा जीवन में अलगताई जीवन अलगावट जीवन को संभालने के लिए हमारी परमेश्वर मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। परमेश्वर का महिमा को प्राप्त करने के लिए दोनों में परमेश्वर का जुरी में रखा हुआ आशीष को, आनंद को, खुशी को प्राप्त करने के लिए हरेक परमेश्वर मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। परमेश्वर का महिमा को प्राप्त करने के लिए दोनों में परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, महिमा को प्राप्त करने के लिए और परमेश्वर हमको मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। एलिया और मोसेस का मानने परमेश्वर का जुरी में ज्यादा समय रहते हुए परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए उस स्थान में हम दिखाई देने के लिए हमारी परमेश्वर अनुरोध देना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise। हम सबको यीशु का आगमन के लिए हमेशा तैयार रखना जिसके लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। सप्ताह में होने वाला यूथ मीटिंग को भी परमेश्वर मौज उठा के आशीष करना चाहिए। जितनी बच्चे फॉर्म भरा है सारे बच्चे वहाँ पर जाकर आशीष पाने के लिए, सारे विश्वासी लोग भी वहाँ पर आने के लिए सबका अनुरोध देना चाहिए। कोई भी सुस्ती लापरवाही के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सबको परमेश्वर आने के लिए, आशीष पाने के लिए परमेश्वर मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। अब तो पूरा जय के साथ चलाना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। हमारा मीटिंग शुरू से लेकर अब तक बहुत आत्मा चला हमारी को आशीष किया। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। आत्मा शरीर परमेश्वर को हाथों में साम देते। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। खुदा बेटा पवित्र आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord। स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी, खास करके खुदावंद प्रभु जी सप्ताह के पहले दिन खुदावंद तूने हमें अपने समुख में लेके इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। और भी खुदावंद प्रभु जी तेरा समुख हमारे साथ लाने के लिए, मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी हमारे खुदावंद मीटिंग में लाए हैं खुदावंद हर एक बहन भाई को लेकर धन्यवाद तारीफ कर दिया। जितने लोग आए सबको आशीष करके देने के लिए, सहायता करने के लिए हम तेरे से प्रार्थना करते हैं। जितने खुदावंद दुख के साथ आया, परेशानी के साथ आया, कई प्रकार के दुख खुदावंद कष्टों के साथ आया, उनके सारे कष्टों से उनको छुड़ाने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी मीटिंग में शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरा आत्मा हमारे बीच में मंडलाता रहे, इसलिए तेरे धन्यवाद तारीफ करते हैं। खास कर खुदावंद हमारे गीत की सेवा का बोझ उठाया, आशीष करके दिया। और खुदावंद प्रभु जी खुदावंद आत्मा के बाग का बोझ उठाया, आशीष करके दिया। तूने हमसे बातें की, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंद। खास करके खुदावंद प्रभु जी हमारे खुदावंद गवाही के भी खुदावंद सेवा का बोझ उठाया। जितने लोगों ने गवाही में खुदावंद प्रार्थना की मांग किया, उनके सारी जरूरतों को पूरे करके देने के लिए भी हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। खास करके खुदावंद प्रभु जी हमारी मीटिंग खुदावंद वचन की सेवा का बोझ उठाया। वचन हम सुनने वाले ने वचन का हमारे जीवन को बनाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद जैसे हमने पढ़ा खुदावंद ये 6 दिन के बाद खुदावंद प्रभु जी पतरस यूहन्ना याकूब को खुदावंद रूपांतरण पहाड़ पर लेके गया खुदावंद। खास करके खुदावंद प्रभु जी 7वां दिन जो विश्राम का दिन है और 8वें दिन में खुदावंद प्रभु जी सब कुछ हुआ। इसलिए हमारे जीवन में खुदावंद हम देखते हैं खुदावंद रूपांतरण के बाद ही सब कुछ खुदावंद प्रभु जी एक सिद्धता के बाद ही हमारे लिए रूपांतरण का खुदावंद इस रूपांतरण को पाने के लिए खुदावंद तो हमारे सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी हमें किन किन स्थानों में रहना चाहिए करके वो भी खुदावंद तूने हमें सिखाया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। और खुदावंद प्रभु जी जैसे हमने पढ़ा खुदावंद पहाड़ पर हम रहना चाहिए खुदावंद। पहाड़ एक खुदावंद प्रभु जी एक ऊंचे अनुभव को दिखाता, प्रार्थना जीवन को दिखाता खुदावंद। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना जीवन पाए जाने के लिए खुदावंद तू मदद करना चाहिए, तभी हमारे जीवन खुदावंद एक रूपांतर में खुदावंद होकर बदल सकता है खुदावंद प्रभु जी। और दूसरा लगाव जीवन हमारे जीवन में पाए जाने के लिए खुदावंद तू मदद
करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। अलगाव जीवन में खुदावंदा प्रभु जी द्वारा खुदावंदा हम तुझे प्रसन्न करने वाले हो कि खुदावंदा पाए जाने के लिए तू मदद करना चाहिए। जैसे इस्राएलियों के बारे में खुदावंदा प्रभु जी जैसे खुदावंदा प्रभु बिलाम कहता वो एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहती है खुदावंदा, अन्य जाति लोगों के साथ हम नहीं मिलती खुदावंदा, इसलिए हम अन्य जाति लोगों के साथ ना मिलते हुए अकेले रह के अलगाव का जीवन बताते हुए खुदावंदा जीवन बताने के लिए सहायता करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा जैसे हम पढ़े खुदावंदा मनुष्य का पुत्र कष्ट उठाएगा, इसलिए कष्टों के द्वारा ही हमारे लिए खुदावंदा वो महिमा रखा हुआ खुदावंदा, वो महिमा को पाने के लिए खुदावंदा तो हमारी सहायता करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। मसीह के साथ हम कष्ट उठाएंगे, हम महिमा को प्राप्त करेंगे खुदावंदा, इसलिए हमारे पल भर का क्लेश जो है वो अनंत महिमा को प्रकट करते हैं करके खुदावंदा, इसलिए उस महिमा को पाने के लिए खुदावंदा हमेशा कष्ट उठाना मन पाए जाने के लिए सहायता करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी जैसे मूसा और एलिया दोनों जो है पहाड़ पर खुदावंदा प्रभु जी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा खुदावंदा जीवन बताया खुदावंदा प्रभु जी ज्यादा है तेरे सम्मुख में खुदावंदा प्रभु जी रहे खुदावंदा, इसी प्रकार हम भी तेरे खुदावंदा सम्मुख में रहेंगे खुदावंदा प्रभु जी, तो तभी हम खुदावंदा प्रभु जी तेरी उस खुदावंदा महिमा को प्राप्त कर सकते हैं खुदावंदा, परमेश्वर की हजूरी आनंद की भरपूरी करके खुदावंदा, इसलिए खुदावंदा जैसे खुदावंदा जब हम तेरे साथ कष्ट जब जहाँ हम पहाड़ पर रहेंगे करके खुदावंदा तो तभी हम खुदावंदा प्रभु जी जैसे मूसा जो था एक मरा हुआ था लेकिन खुदावंदा एलिया जो जिंदा है, इन दोनों ने खुदावंदा पहाड़ पर कष्ट रह के खुदावंदा तेरे सम्मुख अनुभव किया। इसी प्रकार खुदावंदा जो जब तक हम मसीह में रहेंगे तो खुदावंदा हम खुदावंदा प्रभु जी तेरे हजूरी में रहेंगे तो खुदावंदा प्रभु जी जैसे खुदावंदा जो जब मसीह परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी तो जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे और जो हम जीवित हैं वो हम परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे करके इन आशा के साथ खुदावंदा अपने जीवन के दौड़ को दौड़ने के लिए खुदावंदा तू मदद करना चाहिए। ये आशा को खुदावंदा दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में न्याय करते रहने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। हमेशा पहाड़ वाले एक अनुभव हमारे जीवन में पाए जाने के लिए सहायता करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा इस सप्ताह में होने वाले हमारे यूथ मीटिंग का बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए। मीटिंग के बाद होने वाले संडे स्कूल की सेवा का भी और खुदावंदा प्रभु जी याबेश मीटिंग का बोझ उठा चलाने के लिए मदद करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा गर्मी से खुदावंदा हमें हमारे लोगों को बचा कर रखने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। देश में भी शांति देना चाहिए, हमारे खुदावंदा प्रभु जी अच्छा एक भवन बनने के लिए जितने रुकावटें सारे रुकावटों को दूर करने के लिए तुझसे दुआ करते हैं। तेरे हाथ में देते हैं, तेरे नित्य राज्य के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with them for one of us now and until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah.